Hello, students, and now I'm with you again, and with the different topics of management accounting, unit third. The topic is incremental costing. So, basically, in my previous lecture, I discussed with you the different aspect of differential costing and different and importance and uses of differential costing and managerial costing and etc. But now today, I'm going to discuss with you incremental cost or incremental costing. So basically, for any company or any business, incremental cost is an essential calculation to determine the changes in expenses they will be incurred if they expand their production. तो जनरली इंक्रीमेंटल कॉस्ट की जो नेसेसिटी है वो तब आपकी क्रिएट होती है जब हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज या करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी कॉस्ट हमारी बढ़ेगी पर यूनिट अब उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं. द कंपनीज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट दीज एडिशनल कॉस्ट. ये जो एडिशनल कॉस्ट है फिर इनको हम बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट इसको प्रेजेंट कर सकते हैं एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन्फ्लुएंसेस द decisions and the company makes regarding the expanding or increasing production, etc. In that particular discussion, I discussed with you the definition of incremental cost, yeah, concept and increment cost, and how it can be help the company to make profitable business decision, etc. So now the first thing is what is incremental cost. So as you see here, so the incremental cost is so incremental cost is the extra cost that a company incurs if it manufactures an additional quantity of the units. कोई भी जो कंपनी अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करती है तो उस पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लाती है उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल कंसिडर ए कंपनी दैट प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट एंड डिसाइड दैट इट कैन बी फिट 10 मोर यूनिट्स इन द इट्स प्रोडक्शन शेड्यूल. तो अगर कंपनी 100 यूनिट्स बनाती है और उसको 10 यूनिट्स और वो इसमें ऐड करना चाहती है तो उस पर जो कॉस्ट आएगी वो इंक्रीमेंटल को. So that additional cost will incur for producing these 10 units is the incremental cost. जो भी cost जो additional cost जो इन 10 units पे आपकी खर्च होती है expense होता है वो आपकी incremental cost कहलाएगी. So sometimes incremental cost is sometimes known as a marginal cost also, but there is a difference between two. In marginal cost, you would consider the increased total cost and will arise from the production of one more unit. ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करें वन मोर यूनिट भी अगर इंक्रीज करते हैं तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जो है वो बढ़ जाती है किसी प्रोडक्ट की. When considering the incremental cost, you take into account only the total cost that change from your decision to produce extra unit. तो टोटल कॉस्ट को हम यहाँ लेते हैं और जो भी चेंजेस उसमें आते हैं बिकॉज चेंजेस इन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट बहुत इसमें आएंगे तो टोटल कॉस्ट में चेंजेस आएंगे इसके कारण इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपकी आती है. So these costs can have an effect on the pricing of the product and if the incremental costs lead to an increase in the per unit manufacturing cost of a product, the company may decide and lead to increase in the per unit manufacturing cost of product and company may decide to raise the price of to the retain and its existing returns. So basically, the company may decide to raise the price to retain its existing return on investment or to make more profit. तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्यों आती है और कंपनी जो है प्रोडक्शन क्यों बढ़ाने जाती है या कई बार प्राइसेस में भी चेंजेस होते हैं. तो प्राइसेस बढ़ाने का कारण है कि इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग रिटर्न्स को ज़्यादा करना, रिटेन करना और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना. इसलिए भी कंपनी जो है कई बार मोर प्राइस को इंक्रीज करती है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है बेसिकली वो प्रोडक्शन से आती है. तो इन्वेस्टमेंट पे जितना रिटर्न्स आपको चाहिए उससे ज़्यादा जो है हम देखते हैं. तो हाउएवर इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट. लेकिन कई बार क्या होता है जो प्रोडक्शन यूनिट्स अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है कंपनी में डिसाइड रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. कंपनी फिर जो प्राइसेस हैं उनको भी रिड्यूस करने की डिसाइड कर सकती है एंड मेक अ प्रॉफिट बाय सेलिंग मोर यूनिट्स. और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी उसको ज़्यादा सेल जो है यूनिट्स की करनी होगी. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं. तो बेसिकली
जो है इसमें चेंजेस आते हैं, और जो यू टेक टू अकाउंट ओनली द टोटल कॉस्ट एंड डिफरेंट थिंग्स. सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्क्स कैसे वर्क्स करता है? तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्क्स, एज्यूम दैट योर फर्म स्पेंड्स रुपीज 4 लाख ऑन प्रोड्यूसिंग 8,000 यूनिट्स या ग्लास ऑफ बॉटल्स. तो अगर 8,000 ग्लासेस ऑफ बॉटल्स आपको बनाने, तो आपको 4 लाख रुपीज खर्च कर रहे हैं. मीन्स द कॉस्ट पर बॉटल जो है यू इनकर्स रुपीज 50, 50 रुपये आपकी पर यूनिट आ रही है. इफ़ यू डिसाइड टू इंक्रीज योर आउटपुट एंड मैन्युफैक्चर 10,000 बॉटल्स, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं अपने आउटपुट को, उसको 10,000 यूनिट्स आप करना चाहते हैं, देन स्पेंड रुपीज 4,50,000, और आप 4,50,000 खर्च कर देते हैं ऑन दैट प्रोडक्शन. दैट मीन्स यू विल स्पेंड रुपीज 45 पर यूनिट. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पर यूनिट प्राइस होगा वो 45 रुपीज हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी. लेकिन इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर यूनिट क्या आई? To arrive at that incremental cost, you would subtract the 45 to 40 4,50,000 from the 4 lakh. Then you get the incremental cost of manufacturing. Additional cost rupees on 2,000 bottles will be is 50,000. तो आपने देखा कि हमने 2,000 यूनिट्स अगर हमने इंक्रीज करी हैं, तो उस पर जो कॉस्ट है वो केवल 50,000 आई है. इसका मतलब है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी 50,000 डिवाइडेड बाई 2,000, इट इज रुपीज 25, यानी कि 2,000 यूनिट्स पे 25 रुपये पर यूनिट पड़ा. पहले हमारा जो यूनिट हो रहा था वो 50 रुपीज पर यूनिट आ रहा था. इस तरीके से हम कह सकते हैं. सो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इन्फ्लुएंस द इंक्रीमेंटल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट और जो फिक्स कॉस्ट है वो दोनों इन्फ्लुएंस करती हैं. यू विल हैव डिफरेंट कॉस्ट एट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल. हर एक डिफरेंट लेवल पर जो है आपको इसमें डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पर डिफरेंट जो है आपका कॉस्ट जो है आपको मिलेगी. एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो व्हेन ए कंपनी makes and implements some managerial decision regarding the production of goods and services, so the extra costs arising from this decision is its incremental cost. Incremental cost may be arise from various reasons. So these are the reasons or changes, examples of incremental cost, why the incremental cost is incurred. And the changing of production line, अगर कंपनी प्रोडक्शन लाइन को चेंज करती है तो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्रिएट हो सकती है, राइज हो सकती है. चेंजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन आउटपुट अगर हम प्रोडक्ट आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपकी यहाँ पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट में चेंज हो सकता है. बाइंग एडिशनल और न्यू मटेरियल्स अगर आप खरीद रहे हैं, एडिशनल मटेरियल या न्यू मटेरियल आप खरीद रहे हैं, तो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है. हायरिंग एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा लेबर अगर आप हायर करते हैं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपकी चेंज होती है. एडिंग न्यू मशीन और रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन, नई मशीन आप ला रहे हैं या कोई पुरानी मशीन को आप चेंज कर रहे हैं, तो भी आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है आपकी क्रिएट होती है. स्विचिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आप चेंज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो आपके इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो सकते हैं, राइजेस हो सकते हैं. वेरिएबल ओवरहेड्स आप आपके चेंज होंगे तो इंक्रीमेंटल. सो इस तरीके से कई सारे रीजन्स हैं, एग्जांपल्स हैं, जिनके थ्रू जो है हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं. So for calculating the incremental cost, you can only count all of the present product, like you can only count all of the present period explicit cost and implicit cost, opportunity cost, future cost, and implication that arise from your decision to increase the output. तो जितने भी अगर हम इंक्रीजिंग टाइप के डिसीजन अगर हम लेते हैं आउटपुट को इंक्रीज करने का, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब पे इम्प्लीकेशंस आपका होता है, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे इस पे इफेक्ट पड़ता है. इन सबको हमें यहाँ कैलकुलेट करना है. यू विल एक्सक्लूड द कॉस्ट दैट यू आर बाउंड टू इनकर इवन इफ यू डिड नॉट डिसाइड टू इंक्रीज द आउटपुट. तो आप देखते हैं, तो अगर आप चाहें तो इन कॉस्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर आप बाउंडेड नहीं है. ठीक है. Then how incremental cost different from the incremental revenue? Incremental cost is the price you pay for the production cost that arise when you decide to produce an additional unit of product. तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है? वो प्राइस है जो आप पे करते हैं जब आप कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो आपके पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होती है उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट में रखते हैं. While incremental revenue क्या है? Revenue is the additional revenue you earn from selling the additional units. Revenue क्या है? Incremental revenue का मतलब है जब आप extra units of प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे होते हैं मार्केट में, तो आपको एक्स्ट्रा रिवेन्यू मिलता है, अर्निंग होती है, तो उसको एक्स्ट्रा रिवेन्यू या इंक्रीमेंटल रिवेन्यू कह सकते हैं. कंपनीज बेसिकली जो यूज करती हैं इंक्रीमेंटल रिवेन्यू एज ए कंपेरिजन मेजर्स विद द बेसलाइन रिवेन्यू.
levels and refers to its determine their return on investment. तो बेसलाइन रेवेन्यूज जो लेवल्स है उसको जो है कंपेरिजन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो उससे भी हम मेजर कर सकते हैं. दे कैन then decide how much they afford to spend on marketing campaign and what their sales volume need to be make a profit for the company etc. तो revenues का अगर हम डिसाइड करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको जो है डिसाइड करने में हेल्पफुल हो सकती हैं. इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अफेक्ट ईच अदर. हाउ दे इफेक्ट ईच अदर, ये कैसे इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को. if your incremental cost in manufacturing a product units is lower, अगर आपकी incremental cost जो है lower आती है, कम आती है than incremental revenue, then you earn from selling that units, you company earn a profit. तो particularly जो number of units आप बेच रहे हैं और आप में यहाँ incremental cost आपकी जो है वो प्रोडक्ट की लोअर होती है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से, देन आपको जो है प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी. If incremental cost in manufacturing a product higher, a product unit higher than the incremental revenue you earn from selling, रेवेन्यू से अगर ज़्यादा आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है देन योर कंपनी सफर फ्रॉम अ लॉसेस. सो ये चीज़ें होती हैं, इनके डिफरेंस है. दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू नो दैट incremental cost of additional units, and you then can compare these two prices by receiving or selling the units to find out if your company is bringing sufficient profits etc. तो ये कंपेरिजन आप अगर कर लेंगे तो आपको जो है काफ़ी डिसीजंस लेने में हेल्पफुल हो सकती है. तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू. सो थैंक यू फॉर watching and listening. I hope you understand and go for the management accounting. I hope you understand. Thank you very much.